Hello and a very warm welcome. Thank you, Madhurika, for joining in. Yesterday we read the five emotions, and today, out of 10, we have read five. Today we are going to read from 6 until 10, up till 10. And the emotions that we are going to focus on is disappointment, guilt, inadequacy, overwhelm, and loneliness. We have already understood that each and every emotion is a gift and has a gift as well. And that gift is a powerful message and a practical solution that it provides. And Tony Robbins, particularly, is teaching us how to listen to our emotions, how to learn from them, and how to take action. Uh, Let me very quickly start sharing the screen so that we get it together. All right. So, much more devastating than frustration, however, is the emotion of disappointment. Disappointment can be very destructive emotion if you don't deal with it quickly. Disappointment is a devastating feeling of being let down or that you are going to miss out on something forever. Anything that makes you feel sad or defeated as a result of expecting more than you get is disappointing. And what is the message? The message disappointment offers is that an expectation you have had, a goal you were really going for, is probably not going to happen. So it's time to change your expectations to make them more appropriate for this situation and take action to set and achieve a new goal immediately. And that is the solution. And solution में उन्होंने बताया है number one, immediately figure out something you can learn from this situation that could help you in the future to achieve the very thing you were after in the first place. Second step है set a new goal, something that will be even more inspiring and something you can make immediate progress towards. Number three, realize that you may be judging too soon. Often the things you are disappointed about are only temporary challenges. Very much like in the story of Bill Joel in chapter 2. As I have said, you and I need to remember that God's delays are not God's denials. You may just be in what I call lag time. People often set themselves up for disappointment by having completely unrealistic expectations. If you go out today and plant a seed, you can't go back tomorrow and expect to see a tree. And then thereafter, a fourth major solution of dealing with disappointment is to realize that a situation isn't over yet and develop more patience. Completely reevaluate what you truly want and begin to develop an even more effective plan for achieving it. And number five, the most powerful antidote to the emotion of disappointment is cultivating an attitude of positive expectancy about what will happen in the future, regardless of what has occurred in the past. The ultimate disappointment that we can experience is usually expressed as the emotion of guilt. चलो इसको बाद में पढ़ेंगे बट यस बिफोर वी गो है जब भी डिसअपॉइंटमेंट होगी गुड आफ्टरनून कोमल थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन Good afternoon, Karishma. हाउ आर यू I'm awesome.
Yeah, thank तो you. कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन How are कर लो। you? अमेजिंग। सो जब भी डिसअपॉइंटमेंट होगी हम क्या करेंगे? इमीडिएटली फिगर आउट समथिंग दैट कैन बी डन, जिस उससे हम क्या लर्न कर सकते हैं, वॉट एवर द सिचुएशन बी। उस सिचुएशन से हम क्या लर्न कर सकते हैं एंड हमारे को फ्यूचर में क्या अचीव करना है, रीअलाइन करेंगे अपने आप को। ठीक है। उसके बाद हम न्यू गोल सेट करेंगे और वो गोल बेटर होगा जो हम अभी अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। एंड ऐसा भी होना चाहिए जिसके अंदर आप इमीडिएट प्रोग्रेस एक्चुअल में देख सको और प्रोग्रेस कर सको जिसमें। देन रियलाइज दैट, हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत जल्दी जज कर रहे हो। बहुत जल्दी, यस। इट इज सेड दैट गॉड्स डिलेस आर नॉट गॉड्स डिनायल्स, इट इज द डिवाइन टाइमिंग दैट वी कॉल इट, राइट? तो अब हम ये नहीं कोशिश, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया ट्री का। सीड बोया है तो उसको 2 4 5 दिन में नहीं कह सकते ना वो ट्री बन जाएगा। पहले सैपलिंग आएगा, फिर वो उसके अंदर एक एक पत्ता निकलना शुरू हो जाएगा, बीच में हो सकता है वो मुरझा जाए, फिर वो ठीक हो जाए। ऐसे इट इज अ बिग प्रोसेस एंड यू एक्सपेक्टिंग कि एक दिन में सारे सॉल्यूशंस हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। सो हैव पेशेंस विद योरसेल्फ, डोंट बी डिसअपॉइंटेड इतनी जल्दी जल्दी। फोर्थ वे उसने बताया है डिसअपॉइंटमेंट से डील करने का, इज रियलाइज दैट द सिचुएशन इज नॉट ओवर येट। सिचुएशन तो ओवर तभी होती है जब हम मर जाते हैं। इनफैक्ट सिचुएशन जिसमें है वो तो सिचुएशन ही है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज अनलेस एंड until you stop working on it, right? So develop patience and completely reevaluate whatever you are going through, what you truly want. हो सकता है ना कि आपको truly, so when I take an example of this book reading club, my purpose for starting this club was कि मैं भी बुक पढ़ लूंगी, I will have a system, people will come, they will also read, they will also have a space wherein they can also talk about what they are understanding, so we all together grow. ठीक है? दैट वॉज द पर्पस। तो इंटेंशन ये सेट की थी। और उसके बाद में हो गया कि यार 3 4 5 महीने हो गए, फ्री में चलाया, लेट्स मेक मोनेटाइज इट। ठीक है। इट केम इन लेटर। तो अभी जो वैल्यू वाला था वो ही फ्रूटफुल नहीं हुआ, तो मोनेटाइजेशन वाला कितना ही जल्दी फ्रूटफुल होना था। आई वाज सिटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन इट एक्चुअली। And then I was like, अच्छा, do I really want to monetize it? Do I really want कि हाँ जी मेरे को इसी को लेके आगे बढ़ना है? मेरे को पता भी है कि मुझे करना भी है कि नहीं है, राइट? ये सब जब क्वेश्चंस, सो इट इज सेड जब आपको अपने गोल के अंदर प्रॉपर क्लैरिटी होती है तो आप फिर वेवर नहीं करते हो, एंड देन ओनली द यूनिवर्स ऑल्सो कंस्पायर्स टू हेल्प यू अचीव इट। व्हेन यू डोंट हैव द क्लैरिटी तो फिर कहीं से भी कोई हेल्प कहाँ से आएगी? एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। डिसअपॉइंटमेंट में हम एक्सपेक्ट करना ही छोड़ देते हैं कि ये हमारे को, ये कुछ ठीक हो भी सकता है। ओ गॉड फॉरबिड। मैं तो डिसअपॉइंटेड अभी फिलहाल तक तो नहीं हूँ। अभी फ्रस्ट्रेशन पे भी नहीं पहुंची हूँ, अभी एंगर भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है मेरे को। आई एम जस्ट हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। बट डिसअपॉइंटमेंट इज व्हेन यू एक्चुअली गिव अप, यू गिव अप थिंकिंग कि यार ये नहीं होने वाला है, छोड़ो, आगे बढ़ो, कुछ और करो। नॉट अ बैड आइडिया, बट इफ इट इज टू सून then it is a wrong idea. Have a positive attitude, have an attitude of positive expectancy if you want to shift that energy. ठीक है? That is what I understood from this. um, what did you understand, Komal? Please feel free to share. The way you were explaining the same thing, like these are the steps given for firstly, these are the stages which are being discussed. First, we can try not to come towards that stage. Anger, first is irritation, then anger, then frustration, and so on, disappointment. And but when we have, then author is trying to
say that you can evaluate the way you are telling your own example. We can always evaluate. Like I am trying to evaluate my own decision of going somewhere, or should I live independent, or how it is, what I want, and these things. And then secondly, by evaluating, you will know more about it, or you can set a new goal the way it's being prescribed. If you're not liking the idea which you have already taken, then you will try to reevaluate and set a new goal. What next can be Hmm. done? Yeah. Yes. So that is more important. Hmm. And yeah. And yeah, the way forth he is writing that you will, if you're realizing that situation isn't over yet, the way you're explaining your own example, that then obviously you can much better is to develop more patience towards whatever you are doing, because जैसे आपने बोला कि situations तो हर टाइम ही हैं, and they only finish when we are no more. So it's just like that. So something or the other is always there. And yeah, टोटली हाँ, मतलब वी कैन, बिकॉज कोई मैरिज है उसका बिल्कुल एंड हो चुका है, देन दे कैन से सिचुएशन इज ओवर, देन दे कैन फाइंड अ न्यू गाय हाँ. or something like, or they can live peacefully with how they want to live. But if they are in that, they will see how we can make peace or Yes, of course. anything. But the death of a relationship is divorce. Divorce हो जाएगा तो it is death of the relationship, right? Then you move forward to सेम वे think कि वी अब वर, क्या करना है. यस, सेम वे वी वर सेइंग फॉर लाइफ, कि लाइफ में तो अलग अलग सिचुएशन है, बट वन सिचुएशन, कोई होमवर्क मिला है, अगर आपने कंप्लीट करके असाइनमेंट ऑलरेडी रिटन है और चेक हो गया टीचर से, देन यू कैंट से दैट कैन बी चेंज्ड. बट इफ इट इज स्टिल इन योर होम एंड यू आर नॉट लाइकिंग दैट, दैट मेरे से अच्छे से नहीं हुआ, देन यू कैन ब्रिंग अ न्यू नोटबुक एंड डू इट. Hmm. रीइवेलुएट किया, आपको नहीं ठीक लगा, यू विल सी अच्छा चेंज करूँ या वही रहने दूँ. Then you Hmm. can try what next steps can be done. Same for each and everything. These were just basic two examples. Yeah, Hmm. we're trying to see. Great. Thank you for sharing that poem. Yes, Madhulika, let's hear it from you. Nothing much, Karishma. Nothing much to share. हाय, आज आपके पास शेयर नहीं करने को. Huh. Why? uh, I think why? Because I really don't want to think about disappointment. Wonderful. Wonderful. Great. Yeah, That makes sense. That makes sense. I couldn't hear क्या बोल रहे थे. She does not want to think about disappointment. Okay. All right, let's go forward to guilt. The ultimate disappointment that we can experience is usually expressed as the emotion of guilt. The emotion of guilt, regret, or remorse are among the emotions human beings do most to avoid in life. And this is valuable. They are painful emotions for us to experience, but they too serve a valuable function. One which becomes apparent once we hear the message. And the message what guilt brings is guilt tells you that you have violated one of your own highest standards, and that you must do something immediately to ensure that you are not going to violate that standard again in the future. If you recall in chapter 6, I said that leverage is accessed when someone begins to link pain to something. With enough pain linked to a behavior, the person will eventually change it. And the strongest leverage is the pain we can give ourselves. Guilt is the ultimate leverage for many people in changing a behavior. However, some people try to deal with their guilt by denying and suppressing it. Unfortunately, this rarely works. Guilt does not go away, it only comes back strong. The other extreme is to surrender to and wallow in guilt, where we begin to just accept the pain and experience learned helplessness. This is not the purpose of guilt.
It is designed again to drive us to the action to create a change. People fail to understand that this and often feel to remorse about something they once did that they allow themselves to feel inferior for the rest of their lives. That is not the message of guilt. It is here to make sure that you either avoid behaviors out of your certainty that they will lead to guilt, or if you have already violated your standard, it's there to induce enough pain within you to get yourself to recommit to the higher standard once again. Once you address your old behavior that you may feel guilty about, through though, and you are sincere and consistent, then move on. The solution क्या है? How many of you have some kind of a guilt in your life? Yeah. Yeah. till Madhulika, uh, till a long time I actually asked myself this question, but I don't much resonate, or maybe I don't know where I or where this emotion may be there, but it's not very easy to recognize, or I was like, I don't know, or I don't have any guilt. guilt happens only when you are doing something wrong. That's it. जिंदगी Hmm. में कभी कुछ गलत नहीं किया. स्ट्रेंज इनफ, मतलब मुझे गिल्ट कम होती है। आई एम द पर्सन, मतलब जो खुद को ब्लेम ही नहीं करती है। आई एम, इट्स नॉट गुड और बैड, दैट्स डिफरेंट टू असेस। सम पीपल आर लाइक जो सेल्फ ब्लेम जल्दी करते हैं, है ना। मेरी कजन जैसे कहती है कि ऐसे अपने आप को थप्पड़ मारने लग जाओ, मतलब सम पीपल कैन हैव एनी टाइप ऑफ डिफरेंट टीनेज में है, जबकि वो अपने फ्रेंड को पूछ रही थी, अच्छा तुझे पता है कुछ लोग बिल्कुल ये वियर्ड समझते हैं ऐसे अपने आप को करना और ये सब। उसके वो कर रही होगी तो उसकी मम्मी कहती तू क्यों लगा रही है, मैं लगा देती हूँ। मतलब समथिंग लाइक दिस। मतलब इट शोज दैट ही मस्ट बी फीलिंग गिल्टी अबाउट समथिंग, बट हम्म. बिकॉज ऑफ माई बीइंग सो, मतलब मेरी एक वो ट्रेट बहुत ज्यादा है, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। सो आई एम गिल्टी ऑफ थिंग्स, बट yes still there are matlab I'm always away from Got this it. emotion Got it. mostly. Got it. Got it. Yeah, Amazing. still I'm guilty if I try, I know I'm guilty of जो conflicts होती रही with me, with others, जो Mhm. between me and others. Chalo, let's understand what is the solution. Number Yeah. one is acknowledge that you have, in fact, violated a critical standard you hold for yourself. Then number two is absolutely commit yourself to making sure that this behavior will never happen again in the future. Rehearse in your own mind if you could live it again, you could deal with the same situation. You feel guilty about in a way that is consistent with your highest personal standards. As you commit beyond a shadow of a doubt that you will never allow this behavior to occur again, you have the right to let go of the guilt. Guilt has then served its purpose to drive you to hold a higher standard in the future. Utilize it. Don't wallow in it. Some people manage to beat themselves up mentally and emotionally because they are constantly failing to meet standards that they hold for themselves in virtually every area of their lives. As a result, most of these people experience a feeling of inadequacy. So समझ में आ गया गिल्ट को कैसे सॉल्यूशन का गिल्ट का क्या है कि Yes. इफ यू हैव गिल्ट देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज इट. इनफैक्ट किसी भी इमोशन को जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करते हो तब तक उसका सोल्यूशन तो वैसे ही नहीं निकल सकता. और हमारे को यहाँ पे क्या एक्नॉलेज करना है कि हमने अपने हर किसी ने अपना एक स्टैंडर्ड अपने दिमाग में बनाया होता है कि मैं आई एम एट दिस बार. एंड जब आप उस स्टैंडर्ड से बिलो की बात करते हो नीचे चले जाते हो तो यू फील गिल्ट. Yeah, सो for फॉर me. एग्जाम्पल आई Hmm. स्टिल रिमेम्बर मैंने ये स्टोरी शेयर करी हुई है कि आई रेज्ड माई वॉइस अगेंस्ट माई मदर इन लॉ वंस. आई Hmm. गेव माई बेबी टू मदर इन लॉ, ये लो आप ही संभाल लो.
एंड उनके लिए वो कुछ नहीं था, शी फॉरगॉट, बट बिकॉज आई हैव माई स्टैंडर्ड to a level that I am not going to raise my voice no matter to anyone. And mother-in-law, father-in-law के साथ तो no matter what happens, I cannot do that. जब मैंने वो कर दिया तो रात को नींद नहीं आई. तो what did I do? I had to correct it so that I could sleep it. You and then you have to make sure that you are not going to repeat it no matter what happens again. And when you do that, then you can let go of the guilt. तो वो गिल्ट आज तक तो अब तो है ही नहीं, क्योंकि अब तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ भी नहीं है. बट इन एनी केस आई नेवर एवर रेज माई वॉइस. Yeah, because you have हाँ. that principle already यस. stated in your mind कि ऐसा नहीं करना, तो आपको इसलिए गिल्ट आ रहा है. बिकॉज हाँ. मैंने ऐसा कुछ बनाया नहीं, बट आई एम लर्निंग फ्रॉम माई हस्बैंड दैट कैसे वो अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट और ये सब को कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं. For me, I have kept like we did not inculcate those habits. We were just like friends and frankly liberal with our parents. तो फिर वो boundaries भी तोड़ी हैं with parents, हम्म. I'll admit. So then now I am consciously doing it. कि because you हम्म. you don't like your behavior to go that way. Uh, Madhurika, do you want to share something on this? so it was like this. So we can amend that behavior, not हम्म. to not feel guilty. नाउ आई एम लाइक तुझे ही नहीं अच्छा लगता जब तुम अब मतलब चाहे मैं ब्लेम कर देती हूँ, नहीं वो मुझे ऐसे बोल रहा था इसलिए मैंने ऐसे किया. मेरे को ये व्हाट वी से कि प्रोवोक कर रहे हैं. देन आई एम नॉट लाइकिंग एनवायरमेंट, नॉट लाइकिंग कंडीशन, दैट्स व्हाई आई हैव टू डू दिस. चाहे मेरा ब्रेन उसमें ऐसे आंसर कर रहा है, बट देन ऑल्सो आई वाज लाइक मेरा तो है ना कि आई शुड नॉट डू इट, speak in a wrong way. So I'm trying to amend it. That is the work. Yeah. So, Madhurika, would you like to share something? गिल्ट तो और भी आगे है इससे, डिसअपॉइंटमेंट से. बट यस, गिल्ट मुझे लगता है ऐसे डिसअपॉइंटमेंट वी कैन फील, एनीवन कैन फील एनी टाइम. डिसअपॉइंटमेंट इज विद अ स्मॉल लॉस, बट गिल्ट इज ऑलवेज विद अ बिग लॉस. जितना बड़ा लॉस होता है उतना ही बड़ा आपको गिल्ट होता है. एंड गिल्ट इज वन ऑफ द मेजर रीजन व्हाई पीपल कमिट सुसाइड. दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन. फेलियर होके सुसाइड, हमें लगता है लोग फेलियर होके सुसाइड करते हैं, दे कमिट सुसाइड, बट इट इज ऑलवेज द गिल्ट जो पीछे होता है. क्योंकि आपने एक बिजनेस किया, फेल हो गए, अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो यू आर नॉट गोना सुसाइड, राइट? यू विल कमिट सुसाइड जब आपके पास जितना था और फैमिली बिल्कुल दे आर इन अ बिग सूप एंड दे डोंट हैव एनीथिंग, और मे बी बहुत ज्यादा आपके ऊपर डेट्स हो गए हैं. सो बिकॉज द गिल्ट इज मोर, द डिसअपॉइंटमेंट इज इन द हाइएस्ट फॉर्म, गिल्ट इज हाई, then people commit suicide. So this is one of the major reason, and it doesn't come with आपने क्या किया, कि आपने, क्योंकि अपनी गलती तो कोई नहीं मानता. वॉट एवर वी विल डू, राइट कोमल, वी विल हैव आवर ओन रीजंस. मैं तो नहीं ऊंचा बोलना चाहती थी बिकॉज दे डिड इट दैट वे, यू नो. मैं तो बच्चे को नहीं मारना चाहती थी, पर ये मेरी बात ही नहीं सुनता है रोज, राइट? मैं तो सड़क पे नहीं हल्ला मचाती, लेकिन उसने इतनी जोर से मारा. सो वॉट एवर इज देयर, वी ऑलवेज गिव, वॉट एवर वी डू, वी ऑलवेज हैव एन रीजन टू डू दैट. ठीक है, हम मे बी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, रिएक्ट कर देते हैं, तो हम उसको एक जस्टिफाइड, बट अपनी गलती कोई नहीं मानता, उसके पास जस्टिफाइड, हमारे पास अपने रीजन होते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कहा. नहीं, बट गिल्ट तो तभी होता है ना जब आपको पता चलता है यार ये मेरी बिलो द बेल्ट हो गया मेरे हिसाब से, मैंने उसके गलत कर दिया. उसका भी हमारे पास रीजन होता है. मैंने नहीं किया बिलो द बेल्ट, उन्होंने ऐसा कहा इसीलिए मैंने ऐसे किया. और गिल्ट हमेशा तब होता है जब लॉस बड़ा होता है, जब हम्म. जितना बड़ा लॉस होगा. सी, आपने अगर ऑनलाइन अगर आप देखते हो तो वो हमारे यहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर है, इंस्टा इन्फ्लुएंसर, चटोरी रजनी. हम्म. शी जस्ट लॉस्ट हर सन. Yes, एंड I have seen those videos. Yeah. वीडियोस ना, हाँ. सो कोमल, Mm, उसका जो बेटा था वो 11th 12th में था. right.
एंड शी गेव, और वो बाइक पे था। तो उसकी माँ को कितना जबरदस्त गिल्ट होगा कि मैंने चाबी ही क्यों दी, काश मैं ये कर लेती, काश मैं मना कर देती, हम्म। दैट इज, जितना बड़ा लॉस उतना बड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट, उतना ज्यादा ग्रीफ, उतना ज्यादा बड़ा आपको गिल्ट उस True. केस में होता है। सो पीपल, ये दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट रीजन that people commit suicide is failure. Second is belongingness. They don't I find saw themselves that to be that worth episode living. where friends were coming and wearing his shoes, और सब उसकी मदर और पेरेंट्स को मतलब लाइवली रख रहे हैं। फ्रेंड्स आर कमिंग, तो मतलब टू सपोर्ट देम, टू सपोर्ट द पेरेंट्स, कि उनका चाइल्ड नहीं है। वो वाला एपिसोड मेरे आगे था, एंड आई वाज हैप्पी कि दीज पीपल एग्जिस्ट इन दिस एनवायरनमेंट और वर्ल्ड, वेयर मतलब 4-5 फ्रेंड्स आते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, वैसे गेम्स खेलते हैं, उनके घर में रोम करते हैं। हम्म। मतलब वो चाइल्ड को ऑब्वियसली मिस कर रहे हैं, बट पेरेंट्स के साथ फिर मॉम ब्लॉग इसीलिए ब्लॉगिंग करती है, सो दैट शी कैन स्टे इन अ बेटर वे। पहले भी करते होंगे डेफिनेटली, आई एम पहले भी नॉट श्योर। बहुत, हाँ, उनकी ब्लॉग्स शुरू से आते हैं, शी यूज्ड टू ओके। कुक फॉर हर सन ओनली, ओके। या। कि उसको इतना पसंद है, उसको इतना पसंद है, आज मैंने उसके लंच में ये दिया, तो उसके ब्लॉगिंग में उसका बेटा ही दिखता था ज्यादा। ओ। उनके हस्बैंड का क्या नाम है पता नहीं, शर्मा जी बोलती हैं, क्या बोलती हैं उनको, कि मैंने इनके लिए ये बनाया है लेकिन उसको इतना पसंद है, ओ। उसके लिए मैं ये बना रही हूँ, आज मैं सोच रही हूँ वो ट्यूशन से आएगा तो ये बना दूँ। तो उसके ब्लॉग जो थे वो सेंटर्ड हिज हर सन ही थे। तो yes, there is a community, her, see, she is not the only one who is going through this, so the community always comes forward। जब अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो there is a very strong community, they come forward, कि we will spend time with you, मेरे साथ भी ऐसा हुआ हुआ है, मेरे साथ ऐसा हुआ हुआ है, इनके साथ ऐसा हुआ हुआ है, तो you know all that। बट वो तो उनके पास आते होंगे ना मधुलिका, जिन्होंने एक्चुअल में मतलब कहीं ना कहीं बोला होगा कि आई एम फेसिंग दिस और दैट। पीपल आर साइलेंटली सफरिंग एज वेल। हाँ, पीपल आर साइलेंटली सफरिंग, पर जब इनको पता लगता है, कहीं से भी पता लगता है, तो दे गो। It's not that you need to ask help. If they come to know that this has happened, they will go. वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो मुझे भी लगता है कि गिल्ट का यही है। और जो कोमल ने भी एक बात छेड़ी, कि दैट शी इज ऑल्सो लर्निंग अबाउट फ्रॉम हर हस्बैंड, हाउ टू लास्ट 2-3 years मैंने यही होता था कि वेन एवर आई वॉज इन दैट मेस, कंफ्लिक्ट वाला इशू, तो आई यूज टू से नहीं नहीं, पापा ने प्रोवोक किया है, बिकॉज हमेशा ना वो कुछ गलत ट्रिगर करते हैं, देन ओनली मुझे पता नहीं लगता, मैं बोलती हूँ। एंड इट्स वेरी नेचुरल, तो मैं कहूंगी नहीं, अभी अभी भी हाफ ऑफ माई माइंड विल से दैट, आई एडमिट, कि मतलब मुझे लगता है कि नहीं, वो बात ले जाते हैं लोग आपको वहां पर, तो आप इसलिए कर रहे हो, मतलब देन आई हैव टू प्रिवेंट, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि हाउ टू अवॉइड। और बट ये लर्न नहीं होता कि हाउ वी कैन ईज इट। अब नाउ आई एम ट्राइंग, ट्राइंग एटलीस्ट, क्योंकि मॉम को तो पहले ही फ्रेंड था, बट मॉम भी फिर जब पापा के इन्फ्लुएंस में होती है, शी ऑल्सो चेंजेस, अभी मॉम पापा घर पे नहीं है। सो बट या, दैट इज आवर वे हाउ वी कैन सी कि मेक बैलेंस। बट कोमल, एंड क्या लगता है आपको कि योर पेरेंट्स, योर सॉरी योर हस्बैंड नेवर हैव कॉन्फ्लिक्ट्स विद हिज पेरेंट्स? आई अंडरस्टैंड यू आर गोइंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, लाइक दे डू हैव, इट इज वेरी इजी। मैं आपको बताती हूँ पूरा उसके गेम क्या है। प्रिंसिपल्स में है, उसका जो नहीं एस्ट्रोलॉजिकल नहीं 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 डार्लिंग, नहीं, यू आर टेकिंग इट रॉन्ग। राइट। हम्म। सो व्हाट वर यू सेइंग मधुलिका? Yeah, so I was saying this only, that guilt is something, it's a very strong emotion that leads people, it is one of the most common emotion, which is a reason for someone to end their life. Guilt is something like that। और गिल्ट सिर्फ लॉस से ही होता है, जिसका जितना बड़ा लॉस होता है मुझे लगता है उतना ही बड़ा गिल्ट होता है, छोटे लॉस से गिल्ट नहीं होता। Can guilt happen because
ईगो, अपनी ही ईगो तंग कर जाती है अपने आप। ईगो में बंदा गिल्ट में नहीं जाएगा करिश्मा। ईगो में तो वो ईगो, रीजन मेरी देगा। ईगो है कि मैं इस बंदे से, सो इट्स लाइक there is some kind of an ego or standard that you have set for yourself कि this is the bar that I have set। इससे नीचे की बात नहीं होनी चाहिए, इससे नीचे स्टैंडर्ड में मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी, है ना। और मेरे को निकलना पड़ गया, और फिर मैं गुस्सा आया, फिर फ्रस्ट्रेशन हुई, फ्रस्ट्रेशन के बाद मेरे को वो हो गया सब, ओके। अब मेरे को गिल्ट हो रहा है कि हाय राम, मैंने इतना ड्रामा करा, हाय 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 हाय। नहीं 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 होगा, ईगो से नहीं होगा, इट विल कम आउट फ्रॉम सम अदर। सी, गिल्ट हमें ज्यादातर तब होता था जब हम अपने बच्चों को थप्पड़ मार देते थे, बाद में गिल्ट होता था। सीरियसली। क्योंकि वो रोते थे ना, उनके दुख से हमें दुख होता था। दैट वॉज द बिगेस्ट लॉस। या सोचो, आपकी कोई आपकी सोने की चेन गुम जाए, आपको कितना गिल्ट होगा, कि मतलब कितना दुख होगा, है मैंने निकाली क्यों, है मैंने रखी क्यों, है मैं वहां गई क्यों, है ना। जब वो ढीली थी या वो ऐसी थी, उसका लॉक लूज था, तो मुझे तभी देख लेनी चाहिए थी। तो हम उसी के बारे में सोचेंगे। अगर कोई रिलेशनशिप एंड होता है, और उसके बाद, रिलेशनशिप एंड होने के बाद, अगर आप अगर आप नहीं चाहते थे उसको एंड करना, आप चाहते थे रिवाइव करना, लेकिन वो एंड हो जाता है, देन यू विल बी इन अ गिल्ट कि मैंने तब ऐसा क्यों किया, मैंने तब ऐसा क्यों कहा। सो इफ यू आर इन अ मेटलिस्टिक चीजों का तो नहीं कुछ कर सकते, बट इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप, या बच्चे जैसे फेल हो जाते हैं, तो फिर उन्हें लगता है कि मैंने तब क्यों नहीं पढ़ा, मैंने तब क्यों नहीं किया, मैंने तब क्यों नहीं किया। तो लेकिन अगर आप रिलेशनशिप, एज फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न, सो you decide what do you want. If you now you know the person, if you want to be that person as it is, don't expect कि वो बंदा आपके लिए बदलेगा या उस घर में कुछ आपके लिए बदलेगा। बट if you want that, if you are ready to accept that person as it is, then surrender, then only you can get the relationship. If you do not want that relationship, then move on, simple. यस कोमल। Yeah. Yes, Karishma. So I think we मैंने evaluate किया the way you are asking, can ego lead to guilt later on? I feel it can, because आपके starting में वो ego थी, फिर कुछ actions हुए, आपने कहा नहीं नहीं मेरा standard ऐसा है। Suppose study में है या professional में आप कुछ ego base पे कहीं चले जाते हो, for प्रोफेशनल कुछ है जो वर्क इंपॉर्टेंट है, बट आप फ्रेंड्स की सेल्फ स्टीम में किसी और चीज में आप उसमें चले गए हो, पार्टी में, देन यू आर फीलिंग गिल्टी लेटर ऑन दैट नो आई शुड नॉट हैव बीन देयर, आई शुड हैव परफॉर्म्ड वेल इन माय ऑफिस वर्क। तो अप्रेजल मिला एंड यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, देन ही इज गिल्टी अबाउट दैट थिंग। एंड स्टार्टिंग कैन बी ईगो, मतलब किसी ईगो में आके आपने कुछ ऐसा एक्शन ले लिया किसी ने, एंड देन लेटर ऑन ही इज गिल्टी अबाउट इट। आई थिंक तब हो सकता है ना कि आपके एक्शंस ईगो से बेस हो गए, हम्म। ऑनर से या किसी भी रीजन से, क्योंकि ईगो सेल्फ तो हर टाइम हमारी होती ही है एक्टिव। तो मतलब बेस हमेशा है, इट्स यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, तो बेस तो हमेशा ईगो में होता ही है ना। व्हेन वी आर नॉट कंसिडरिंग रिलेशंस टू बी इम्पोर्टेंट, व्हेन वी आर कंसिडरिंग ईगो टू बी इम्पोर्टेंट इन एवरी फाइट, इन एनी फाइट, दैट इज ईगो वर्क। तो वो तो होता क्या है, अदरवाइज हमें होगा नहीं, रिलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मी प्रूविंग माई सेल्फ टू बी राइट हियर। अगर हम हर टाइम, लैंडमार्क जो मैंने किया था दैट प्रोग्राम, उसमें दिखाते हैं हर टाइम इंसान कर ही रहा है, एवरीबडी इज ट्राइंग टू से, क्योंकि उनको हर एवरीबडी, या कि कुछ कंडीशनिंग्स होती हैं जिसमें आपको राइट अपने आप को प्रूव कर ही रहे हो आप एवरी टाइम, इफ यू असेस, इवन बोलने में भी वी आर ऑल द टाइम आस्किंग फॉर वैलिडेशन दैट यस ठीक है हाँ। ना हाँ। मतलब उन्होंने चार चीजें ही दिखा दी थी, उसमें ईगो सेल्फ तो है ही है, उसके बाद बट वो नेम कुछ और दे दिया था ईगो सेल्फ को उस हम्म। प्रोग्राम में, बट इट इज देयर। जब डैड के साथ हो रही है, व्हेन आई नो ऑलरेडी कि रिलेशन इज इंपॉर्टेंट, देन व्हाई आई एम प्रूविंग माय पॉइंट, एज सिंपल एज दैट। जब मुझे पता है कि इसके बाद consequences क्या होते हैं, कि वी लूज रिलेशनशिप्स, समथिंग बैड हैपेंस, देन वो ईगो ही तो करता है, फिर बाद में आप गिल्ट में जाते हो, दैट थिंग, स्मॉल थिंग।
और उन्होंने यही सिखाया था कि तुम्हें बस ये याद रखना होता है कि रिलेशन इंपॉर्टेंट है या ये इम्पोर्टेंट है, कि जब ऐसा ही उसमें टीचिंग्स हैं कि आपने किस चीज को जीतने देना है अपने माइंड में। हम्म। इट्स अबाउट, मतलब, या समथिंग अबाउट दैट प्रोग्राम इज बेस्ड, ऐसा ही है कुछ। Got it. राइट। नहीं तो आप चलो कंपैशन लव में लेट्स। रहते हो ना, कोई बात नहीं, इनको अभी जो समझ आ रहा है उसमें ही रहने दो। हाँ। विच यू लर्न बट वेरी अर्ली, क्योंकि मॉम आपके चाहे वो किस वे में भी थे, बट आपको बहुत जल्दी वो लेसन मिल गया कि लेट अदर्स विन द गेम। चलो let's continue reading tomorrow. We're already at 2:13. Let's continue tomorrow and we'll move ahead with 8th, ninth, and 10th emotion. I hope this brought some insight for you to, reflect on. आज ना एक काम करना, एक काम ये करना कि थिंक अबाउट दीज इमोशंस। और जब जब आपको ये इमोशन आए हैं, इज हैज देयर बीन एनी मैसेज दैट यू गॉट? क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड कि लाइफ जो है ना हमारी, हमारे को कुछ ना कुछ लेसन, हमारे को कुछ सिखाने के लिए आई है। और जब तक हमारे को XYZ एक्सपीरियंस से कुछ सीखने को मतलब कुछ सिखाना चाह रहा है, हमने सीखा नहीं, तो इट विल कीप ऑन रिपीटिंग टिल वी लर्न द लेसन। तो वो पैटर्न्स इसलिए क्रिएट होते हैं। तो हमारे को अपने जो ये इमोशंस हैं इनको पकड़ के, एक एक इमोशन को पकड़ के देखो कि आपको ये कब आया था लास्ट टाइम, एंड उससे आपने कुछ सीख के कुछ शिफ्ट किया था कि नहीं किया था। It's a very powerful exercise, and if you do it, you will know that there are many times our life keeps repeating its patterns only because we have not learned something from them. Yeah, that's it from my end. Anybody wants to share anything before we wrap up the piece? Madhurika, you want to say something? Karishma, I think every emotion which is being stated over here and we have read about it is to reflect us how that emotion can make us powerful whenever we are in such state. So how we can be powerful, how can we make shift that energy into a Hmm. source of a source of power at that point of time. Hmm. Um, इनफैक्ट उसके आगे ये एक्टिविटी भी हमारे को करनी चाहिए कि हमारे को उस टाइम पे हमने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। इज इट रिपीटिंग अगेन एंड अगेन द सेम पैटर्न? एंड इफ इट हैपेंस नेक्स्ट टाइम, व्हाट इज इट दैट आई एम गोइंग टू डू? बिकॉज अदरवाइज द लूप फिर इनकम्प्लीट रह जाएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर इज गोइंग टू हैपन इन एडवांस। मेरे को ये कोई बोल, सो हाउ डू आई टॉक टू माई हस्बैंड? I have a mental rehearsal before I go and talk to him about something that is difficult talk. And then I rehearse everything. मैं ये बोलूंगी because it has been more than 20 years now we are staying together, right? तो पता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर आने वाला है, ये मैं बोलूंगी, इसके आगे से ये बोलेगा। तो अब ये बोलेंगे, then I'll tell him this, फिर इस चीज के लिए ये बोलेंगे। I already know what is the end result of it. तो I choose कि भैया ये वाली लड़ाई लड़नी भी है कि नहीं, is this battle mine or not? So, why not work with ourselves first before we go ahead with working with others? अपनी लाइफ में कहीं कहीं हमने डिफिकल्टीज फेस की होती हैं, लेट्स हैव अ प्लान इन एडवांस कि हम क्या करने वाले हैं वंस इट हैपन, इफ इट हैपेंस अगेन इन आवर लाइफ। ठीक है ना? आई होप दैट मेक्स सेंस। ये होमवर्क कोमल को कई साल, कई, अब मेरे को लगता है क्या 8th मंथ स्टार्ट हो गए, 7 महीने से मिल ही जाए। फर्स्ट मंथ में भी मिला था। Assessing your emotions. Assessing the situations of your life, learning the lesson, and what are you going to do next? And I'm looking forward that you're going to actually work at least on one or two emotions, How at to do it? least. You mean to be in awareness in our normal day-to-day life, कि कब कौन सा इमोशन आ रहा है and how we are. लिखो ना, लिखो।
आपको कभी कब गुस्सा आया था लास्ट, बताओ। मुझे अभी 2 दिन पहले आया, सेम डे व्हेन आई स्पोक टू यू, कि सब मम्मा के साथ ठीक है, सेम डे, इट वाज यस्टरडे इवनिंग आई थिंक। अब एंशियस हो रहे थे आंट्स और कोई आंटी एंशियस हो रहे थे चलो, उससे। एंगर आया, व्हाट वाज द नीड दैट वाज नॉट गेटिंग फुलफिल्ड? नीड विच वाज नॉट फुलफिल्ड। Actually, I was hungry. So, I was hungry and then I started laughing with my mom थोड़ी देर में ही, कि मुझे एकदम ध्यान आ गया कि खाना वही बना रही है, सब कुछ वही कर रही है, और तुम किस बात की इरिटेट हो रही हो। कि इट जस्ट केम आउट एंड सडनली आई रियलाइज्ड कि मम्मा कह रहे हैं चाय बनाओ। मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं मेरे से नहीं बनेगी, मेरा हेडेक है, मैं टायर्ड हूँ, और मतलब दोनों बाहर से आए हैं। और आंटी, मैंने कहा क्या ये एंजाइटी क्यों क्रिएट करते हैं अंदर, हैं गाय से डर क्यों रहे हो, उसको खाना डाल दो या प्रसाद डाल दो। एंड दे वो गेटिंग स्केयर्ड, कि मम्मा कह रहे नहीं मम्मा स्केयर्ड हो रहे हैं, और मैं थी कि क्या है, उसको कंपैशन से वो गाय है, उसको कुछ डाल दो। जस्ट स्मॉल थिंग्स। तो फिर मैं उसी में भी बहुत कई बार वो बढ़ सकती थी, दैट कुड हैव गॉन, क्योंकि ये शुरू तो कहीं से भी हो जाती है, वी कैन गो बिकॉज मॉम चाह रही है कि कोमल चाय बना दे, एंड मेरे को है कि नहीं नहीं आप ही कर दो, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरे को नींद नहीं आई दोपहर को, आपकी फ्रेंड्स आ गई थी, ये हो गया था वो हो गया था। कोमल चाहती क्या थी इन दैट मोमेंट? कोमल चाहती थी, शी वॉज टायर्ड, शी नीडेड रेस्ट, एंड आई नीडेड रेस्ट, एंड या दैट्स इट। और बस मुझे उस टाइम, हाँ, खाना और मुझे व्हाट इज रेस्ट। अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस टू योर मॉम नेक्स्ट टाइम? See, if I say I'm tired, please can you help me? Please can you do it? This can be the way. But what if that person will say I'm also tired? Then I'm. तो लेट्स पोस्टपोन इट ना, लेट्स पोस्टपोन इट, Hmm. आप भी रेस्ट करो, मैं भी रेस्ट करती हूँ, दोनों थोड़ी देर बात Or करेंगे। second way is just assess the situation, which I did. After doing the anger, then I was like, calm down. I made the tea. Finally, I made it. I made the tea because mom ज्यादा बना देती है. Mom को तो तुम बना दो please, क्योंकि तुम पूरा estimate से बनाती हो. Mom will make. बताओ, अगर बनानी ही थी तो फिर गुस्से का क्या फायदा हुआ? हाँ, तो पहले मैंने ही बना ही देती, गुस्सा मैंने ही ना बना करती। दी क्योंकि मुझे था वो इतना कर रही है। तो टी रखी और मॉम कुछ खा रही है, दोनों हंसने लगे, किसी और आंटी की क्या है, आंटी पूछने लग जाती है क्वेश्चंस। मैंने उसको ट्विस्ट कर दिया कि नहीं, मॉम पे नहीं एंगर निकालना, तो ऐसे ही कुछ और टॉपिक बदल दो, उनकी एक्टिंग करने लग गई। क्या है, आंटी बहुत क्वेश्चंस करती हैं कि कहाँ से आ रहे हो, क्या है, उधर क्यों नहीं गए, वो है कि अब हमें घर तो आने दो। नेबर समटाइम्स स्टार्ट आस्किंग एंड वी वर जस्ट कमिंग होम टायर्ड। तो मॉम को वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्यों क्यों कह रही है उधर नहीं आई, इधर क्योंकि वो कुछ भी समथिंग विच इज चलो, बियॉन्ड। थिंक 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 ऑन इट। दो चार इमोशंस लो, सोचो लास्ट टाइम कब हुआ था, क्यों हुआ था, क्या हुआ था। आई डोंट वांट टू स्टोरी, आई वांट यू टू नो कि मेरे को अब नेक्स्ट टाइम जब ये होगा तो क्या करना है, इज टेक अ दस। पोज, टेक अ पोज एंड डोंट रिएक्ट। बी इट, सो बी इट। नो जो आप कोमल, बोलो ठीक। सिंपली गो। नो कोमल, नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो जस्ट सिंपली गो एंड मेक द टी। खत्म। पता है, बनानी तो है ही है थोड़ी देर इतना बाद। नहीं, ना भी बना रही हो, हाउ डज इट, इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ टास्क कि आई नो। 4 घंटे लगेंगे। इट्स ओके, जस्ट गो एंड मेक अ टी, मेक द टी एंड मेक समवन हैप्पी। या हम्म। सिंपल। पांच मम्मी मिनट में मेरी आपने किसी को तृप्त कर खुश दिया, कर, और क्या चाहिए जिंदगी में। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद इतने सारे स्नैक्स मम्मा ने ही बनाने हैं, मुझे पता है। मेरे को तो सिर्फ टी बोली है, तो आई वाज लाइक मधुलिका, we don't यस। give solutions, we don't give solutions, solution comes from Komal only। हाँ। कोमल की मर्जी, कोमल की मर्जी। शी सेड अगली बार क्या करोगे, मैंने कहा जो करेगी तथास्तु, वही करना। शी विल लर्न फ्रॉम हर एक्सपीरियंस ओनली, शी इज नॉट गोइंग टू लर्न फ्रॉम अस। नहीं, मैं पता नहीं क्यों मेरे को तो लगा कि इतनी देर तो हमें बातें करती होगी, इतनी देर में तो 2 बार चाय बन जाती। चाय बन जाएगी। नहीं, जब आप टायर्ड हो, पूरी गिरने वाले हो रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा होता है, तो उससे हम कुछ नहीं समझ आएगा, आई जस्ट इससे कोई रिएक्ट। फर्क नहीं पड़ता, गंदी बना दो, चाय बना दी ना। अगली बार बोलेगा ही नहीं कोई, अगली बार नहीं गंदी नहीं, बना इट दो। इज नॉट दिस इंटेंशन, नहीं नहीं नहीं, ये इस इंटेंशन से नहीं, आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। आई रियली वांटेड टू हाँ। सर्व यू। भाई मैं हम्म। बहुत थकी हुई थी, ये लो मम्मा चाय। और मेरी आपने इनलॉज चाय बना दी ना, खत्म काम। इनलॉज में भी यही होता था, मैं परफेक्शन में चली जाती हूँ, और यही होता था, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरे को एकदम 1 मिनट बैठने दो, एनर्जी एकदम वो कर देगी, मतलब विड्रॉ, मेरे को ऐसे होगा कि बस लेट जाओ।
समथिंग हैपेंस कि मुझे एकदम होगा कि तो आई तू कैन अपना नॉट डू। थायराइड टेस्ट करा कोमल। Those things have been normal because हाँ गुड। वो तो normal था, but still I always क्योंकि get मेरे that. साथ ये था व्हेन माय थायराइड गॉट डायग्नोस्ड। या मैं भी सोती रहती हूँ, शुगर एवरी टेस्ट वी गेट, बट सम कुछ तो होता है ना, कई बार होने लग जाएगा ये चीजें, और कुछ नो समटाइम नो, ऑल ऑल इज वेल। मतलब शॉपिंग करने गए हस्बैंड और मैं, मुझे होगा कुछ खिला दो, पहले मेरे को कोमल को खाना चाहिए कि एवरी मोमेंट वेन एवर आई एम आउट आई आई लव टू, मतलब कुछ खाने को दे दो, एनर्जी वर्क। मैंने कहा मम्मी आप लोग कैसे सर्वाइव कर लेते हो, कि हाउ यू ऑल आर। इट इज सेम विद माई हस्बैंड एज वेल। हम मॉल जाते हैं ना, सबसे पहले कहते हैं, चलो कुछ खाने चलते हैं। मैं कहा भाई मॉल घूमने आए हैं, खाने के लिए पीछे थोड़ा सा पड़े हो। ही खाना है, वो शुगर का इम्बेलेंस है, आई फील ग्लूकोज स्पाइक्स हो रही हैं कभी, या वो कभी डिप कर रही है, इट कैन बी दैट, शुगर लेवल्स। चलो ठीक है, जो है उनकी मॉम तो थी। अच्छा है, बढ़िया है। देखो आपको क्या सोल्यूशन मिलता है। इफ यू विश यू कैन शेयर इट इन द ग्रुप। ग्रुप में तो सिर्फ मैं और मधुलिका ही हैं, एंड वी नो योर प्रॉब्लम्स, वी विल रीड एंड वी विल सी इफ वी कैन हेल्प यू बेटर। ओके। All right, take care of yourself. God bless you. Have a wonderful, wonderful, wonderful day. Tonight is the last day of the Life's Amazing Secrets. I invited you, Komal, yesterday as well. I would love to have you tonight, because tonight we are going to wrap up. यस, पूरा summary of the book is श्योर। going to happen. ठीक है। एंड ऑफ कोर्स मधुलिका तो होने ही है। देर इज शी इज अ नॉन नेगोशिएबल फॉर मी नाउ। मधुलिका, यू आर अ नॉन नेगोशिएबल नाउ। You got to be डेफिनेटली there. आई एम हैप्पी टू बी इन दैट स्पेस। Thank you. Thank you so much. Thank you. थैंक यू। Chalo ji, take care. God bless you. Bye bye. Lots of बाय love. बाय, Bye. लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर।